We are traveling to Khwata village, which is the last village, Mete village of near the Indo-Myanmar border, and this village is, we are passing through jungles here, and this village is very special because this village is a Mete village surrounded by Kuki villages, and they are living together in this area without any violence or conflict, and which is the reason we have visited this remote area within the jungles, and we are trying to speak to the public there and to know how they are living inside these challenging terrains. We are traveling in the length and breadth of Manipur, and today we are in the Khwata village. This village is very special because this village has set an example of living harmoniously amid the prevailing situation in Manipur, which has seen violence for more than 20 months. Today we met the villagers of the Khwata village, and we interacted with them. We spoke to them. They have shared their life, how they are living in this village. We have spoken to the women. They are, amid these challenges, they are making their favorite dishes. And this village is unique because it is one of the last villages near the Indo-Myanmar border, and last Mete village, you can say, and it is surrounded by different villages of different communities such as the Kuki, Nagas. And however, the interesting situation is that it has continued to stay peacefully. The locals here credit this to the security deployment, secondly to the mutual understanding that the communities have here, which has helped them to live peacefully. And we are seeing that they are very hopeful that peace will happen in all of Manipur soon, which will bring back the normalcy in the state. So that has been the positive attitude of the locals here, which has led to very positive developments here, in the sense that we have not seen a major conflict in this area, and people have tried to live harmoniously. And that is what we have been seeing after our visit in this area, where we met all the locals of the village. They have their own problems, they have some of their problems, but that can only be solved through dialogue. And we have to give credit to the role of the district administration as well as the Assam Rifles and other agencies working here, who have tried their best amid their limitations to help the people living here in this area. Today our team is visiting a very remote village called the Khwata village, situated near the Indo-Myanmar border in the Tengnoupal district of Manipur, and we are joined by the secretary of the village. This village has seen a very unique transformation, in the sense that this is one of those areas which has not seen that level of conflict which is ongoing in Manipur for more than 22 months. And we are going to speak with the villagers. You can see the village life is a small shop here, is selling snacks. This is very popular snacks. इसका नाम क्या है जो बेचते हैं वहाँ के? Sinju. Sinju बोलते हैं ना? हाँ जी. So Sinju, they are selling Sinju here, and we're going to speak with the locals and the villagers here how life has been. You can see a very cute girl riding a bicycle. So that is the environment here in this village. Compared to other places of Manipur, you can see a very positive environment here. The villagers have welcomed us. And सर आपसे ये बात करेंगे, पहले आप अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम टी संजय सिंह है। ये मैं बस्ती का सेक्रेटरी। बस्ती का सेक्रेटरी, क्वाता विलेज। जी क्वाता। तो क्वाता विलेज का लोग जब बात करते हैं, पहले तो ये बोलते हैं कि यहाँ पे फेमस है बैम्बू, बहुत फेमस है, आपको तो पता ही है। हाँ जी। आप ही इसके यहाँ के आप लोगों ने शुरुआत किया, और एक तो फेमस है, बहुत सुंदर है, नेचुरल है। हाँ। लेकिन सबसे और एक खास बात जो क्वाता, अभी बहुत जगह पे क्वाता के बारे में लोग बोल रहे हैं कि क्वाता में मणिपुर के अलग जगह से कम यहाँ पे वायलेंस देखा गया है, और लोग जो है कंपेयर टू अदर जगह से पीसफुली रह रहे हैं। तो आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए कि कैसा यहाँ पे एनवायरनमेंट अभी है। 20 महीने से जो है मणिपुर में जो प्रॉब्लम हो रहा है, उसके बाद भी आप लोग ऐसे रह रहे हैं, आराम से रह रहे हो, तो क्या अभी वर्तमान का क्या प्रॉब्लम है या फिर क्या एनवायरनमेंट है, वो थोड़ा हमें बताइए। वैसे बोलने से तो हमारा बस्ती के लिए तो एनवायरनमेंट शुरू से ऐसा नॉर्मल टाइप है, लेकिन लफड़ा तो मणिपुर में चल रहा है अभी। दो कम्युनिटी के बीच हम लोग भी
बिलोंग्स करते हैं एक कम्युनिटी में, मैते कम्युनिटी में। तो फिर भी हम लोग इसलिए एक तरह में कहने से तो ये भगवान का आशीर्वाद है कि हमारा इतना पुराना साल से हम लोग रह रहा है। उसी समय में भी ये बस्ती ऐसा आसान से ये सब तोड़ फोड़ नहीं किया। इसका वजह से हम लोग माना जाता है कि हमारा भगवान की वजह से ही हम लोग यहाँ पे इस गांव में कुछ तोड़फोड़ अब तक नहीं हुआ है। अब तक नहीं हुआ है। थैंक गॉड प्रॉब्लम नहीं हुआ है। तो ये देख सकते हैं और वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, दिस इज़ द बाइक विच इज़ यूज बाय वन ऑफ द विलेजर्स। दिस इज़ अ वेरी फेमस बाइक इन म्यांमार। सो यू कैन सी हाउ क्लोज म्यांमार इज। ये तो म्यांमार में चलता है राइट। ये तो ये देखिए द गांव द विलेजर्स आर यूजिंग द टेक्नोलॉजी विच इज़ वेरी पॉपुलर इन म्यांमार। बट अगेन कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, आपने बहुत अच्छा एक बात बोला कि यहाँ पे वायलेंस कम हुआ है और लोग अलग जगह से आराम से रह रहे हैं। आपके ऐसे पहले, इसके पहले, वायलेंस के पहले कैसे रिश्ते थे आपके और कुकी भाइयों में? कैसा आप लोगों का संबंध था? जी हम बता दूंगा। ये सच में ये क्या कहूँगा कि सच में हमारा ये बस्ती सुरक्षित अभी तक ऐसा सुरक्षित है। इसका कारण 2-3 पॉइंट्स हैं बस्ती की तरफ से। ऐसा फर्स्ट पॉइंट में हम बताना चाहूँगा कि ये हमारा सिक्योरिटी पॉइंट बहुत अच्छा किया है हमारा, खास करके असम राइफल्स। और अभी थोड़ा महीने के बाद जैसे स्टेट फोर्स आके हम लोग को सुरक्षा के लिए रखा गया है। उसके बाद ये पॉइंट नंबर 2 हम बताना चाहता हूँ कि ये हमारा आसपास के लोग नेबरिंग विलेज में हमारा जितना भी बस्ती है, ये हम लोग मिक्सअप कम्युनिटी है। यहाँ पे मिलजुल के रहता है। एक क्या क्या कम्युनिटी है, क्या क्या जाति है? नागा, मरिंग नागा एंड कुकी ट्राइब्स। तो हम लोग आसपास हमारा नेबरिंग विलेज सब वो है नागा के नेबरिंग में कुकी नागा रहता है। कुकी नागा रहता है। अच्छा। और ये अकेला पहाड़ी इलाका का मैतेई बस्ती बोलने से तो ये आखिरी भी है। और एक बस्ती, ये सिर्फ बस्ती है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये आखिरी मेते बस्ती है टेक्नोपाल इस एरिया में, हम बोल सकते हैं ये बोल सकता है। और कितना घर यहाँ पे है, कितने लोग रहते हैं अप्रोक्सीमेटली हमारा 87 हाउस होल्ड है। 87 हाउस होल्ड, मतलब 500 से ज़्यादा लोग रहते हैं। 437। सो ऑलमोस्ट 500 लोग रहते हैं इस बस्ती में। और अभी तक सब अच्छे शांति से रह रहे हैं। हाँ, शांति से रह रहा है। और आपका कैसा कम्युनिकेशन रहा होगा कुकी भाइयों के साथ? क्या आप लोग अभी भी बात करते हैं? क्या क्या अभी स्टेटस क्या है, लेटेस्ट स्टेटस? क्योंकि 20 महीना हो गया है कॉन्फ्लिक्ट में, अभी क्या स्टेटस है? स्टेटस अभी प्रेजेंट सिचुएशन में तो हम लोग बहुत रिश्ता अच्छा है। पहले से हम लोग बाय लोकेलिटी ऐसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ हम लोग रह रहा था पहले से। अभी भी ऐसा एक तरफ में इतना लफड़ा होने से भी हम एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग के साथ बैठा है। कुकी हमारा नेबरिंग विलेज का कुकी का चीफ हो, चाहे दोस्त लोग हो, वो लोग ने भी हम लोग को एक तरफ में एक नज़र में भाई के तौर पे मान के हो या कुछ ऐसा तौर पे हम लोग मान के अभी तक वो लोग ने नज़र ऐसा बुरा नज़र भी नहीं देखा है। So this can be a very good example in Manipur that people residing, different communities are residing in this area near the Indo-Myanmar border, and so far it has been relatively peaceful thanks to also the efforts of the security agencies such as Assam Rifles, and also the district administration of Tengnoupal has also played a very key role in providing them with all the facilities because they are staying in a very remote area. बहुत अंदर का एक एरिया है, सरकार से भी बहुत मदद चाहिए आप लोगों को रहने के लिए, तो वो भी मिल रहा है। मैंने यही बात किया है। ठीक है, अभी गांव वालों के साथ थोड़ा बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या आप लोगों का चल रहा है। लेट्स मीट द विलेजर्स एंड विच have a chit chat about how their lives have been in the ongoing conflict that we have seen in Manipur.